یہ حدود حرم ہے، یہاں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے، ایک روزہ رکھ رہے لاکھ روزے کا ثواب مل رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اسی طرح ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہو رہا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان میں عمرہ حج کا ثواب، اور ایک حدیث میں آیا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے پیارے نبی کے ساتھ حج کیا۔ تو اس لیے رش ہوتا رمضان میں، دنیا بھر سے مسلمان کوشش کرتے کہ رمضان میں عمرہ کر لے، حج کی فضیلت، حج کا ثواب۔ تو آپ بھی ہمت کرو، عمرہ کر لو، نہیں تو کم از کم طواف کرتے رہو۔ طواف میں یہ کہ آپ اپنے روم سے جاؤ، احرام پہن کے چلے جاؤ بے شک یا سادہ لباس میں، طواف جو ہے باوضو کرنا ہے، چاہے عمرے کا طواف ہے یا نفلی طواف، طواف باوضو کرنا ہے۔ 7 پھیرے طواف کریں، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے استلام شروع کریں، طواف کے 7 پھیرے کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، تو یہ آپ کا نفلی طواف ہو جائے گا۔ تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا گھر کے ہر فرد کی طرف سے چاہو تو ایک ایک طواف کر لو، صبح شام ایک ایک کر لو، ہمت کر کے کوشش کرو جو ہے جتنا وقت حرم میں گزر جائے۔ تراویح بھی پڑھ لو کہ مکے میں ایک نماز 1 لاکھ ہے، اور رات کو پھر 2-4 گھنٹے سو کے تہجد پڑھ لو، ایک تہجد پڑھو گے 1 لاکھ تہجد کا ثواب۔ ماشاء اللہ۔ جو رات کو سو جائے نا، چاہے تھوڑی دیر سوئے، 1 گھنٹہ 15 منٹ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اس کے بعد سو کے اٹھے، جو رات میں نماز پڑھے وہ تہجد کی نماز ہوتی۔ تو کیا ملے گا؟ تہجد پڑھنے والوں کو بھی جنت ملے گی۔ ایسے حدیث میں آیا تہجد گزار جو ہوگا، تہجد پڑھنے والا، تہجد کا پابند، 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے، جو تہجد کے پابند ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ان میں سے ہر 70,000 کے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو جنت ہے اس کے بارے میں قرآن میں پڑھو، حدیث میں پڑھو، آپ کو پتہ چلے جنت اللہ نے کیسی بنائی۔ جنت جو ہے نعمتوں کا گھر ہے، جس طرح جہنم جو ہے عذاب کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ جنت نعمتوں کا گھر ہے۔ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں، جنت میں ہر طرف ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کو صبر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی ایسی نعمتیں نہیں جو عام جنتی کو ملے گی۔ جنت میں جنتی کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جو بچہ فوت ہوا وہ بھی جنت میں جاتے 30 سال کا ہو گیا، جو بوڑھا فوت ہوا سفید داڑھی والا، سر کے بال سفید ہو گئے، وہ بھی جنت میں جاتے ہی 30 سال، اسی عمر کے رہیں گے۔ جو چاہیں گے کھائیں گے، ما تشتہی، جو دل ان کا چاہے گا۔ یہاں جو دل چاہتا ہے ہر چیز نہیں ملتی، بعض بار بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ یار چلو گنجائش نہیں، بعض بار اب بیس میں آیا، یہاں بھی آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی، گھر والی سیلی نہیں ملے گی۔ گھر میں جو سیلی کرتے ہیں ماشاء اللہ اچھی اچھی سیلی ہر ان کی الگ الگ ہوتی ڈشیں ہوتی، یہاں وہ نہیں ملے گی، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، سادے رہے سفر میں، اور دنیا میں ویسے ہی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کوئی چاہتا ہے دنیا میں میری ہر خواہش پوری ہو جائے، ایک وظیفہ ہے جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اسے چاہیے وہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں یہ وظیفہ ہے۔ تو اگر یہ آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ انسان کے دل میں بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، میری عمر 45 سال ہو گئی، آپ کی بھی 25، 30 سال، 40 سال پہنچی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا تو یہی تجربہ، دنیا میں جو انسان جو مانگتا ہے نا رب سے اللہ دے دے، اللہ اپنی رحمت سے دے دیتا۔ کوئی کہتا ہے میں نے وزیر اعظم بننا، وہ بھی بن جاتا ہے، بس پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے یا نافرمانی۔ اولاد چاہیے، مال چاہیے، دکان چاہیے، کوٹھی بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور یہاں سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں، یہاں سے سب جولیاں بھر کے لے کے جاتے۔ یہاں دل کی مرادیں جو ہے رب سے مانگ لو، کعبے کو دیکھ دیکھ کے جو مانگو گے دعا قبول ہوگی، کعبے کو دیکھ کے جو مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، کوئی سنا ہی نہیں کہ یہاں سے خالی کیا ہو۔
गोलियां भर भर के लेके जाते। तो आप भी अपने यकीन से महबूब मेरा नाम सुनने वाला भी है ये और देने वाला भी है। कादिर है अता करने में शहीद मजीद है। यहाँ देखो हदूद अरब का निशान आएगा राइट साइड पे दरख्तों की किनार में, सामने ग्रीन कलर के पत्थर की टाइल के बोर्ड आएंगे, उन पे लिखा एंड ऑफ हरम, सामने बोर्ड लगा है राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे पहाड़ी के ऊपर देखो साफ नजर आएगा, इस पे लिखा एंड ऑफ हरम। ये बोर्ड गुजर गया इधर उधर, वो देखो पहाड़ी के ऊपर मक्के हरम लिखा, जो भी रास्ता मक्के से बाहर निकलता है उधर मक्के हरम जहाँ खत्म होती है वहाँ ये निशान लगाई। ये है अरफात, इधर अरफात का मैदान अभी नजर आएगा। अरफात की तरफ सऊदी अरब 20 किलोमीटर, आयशा की तरफ उमरा करने का वो भी सऊदी अरब से बाहर है। तो बिना उसने देखा होगा मस्जिद आयशा के मेहराब के पास बोर्ड लगे हुए हदूद हरम की इंतहा, एंड ऑफ हरम बाउंड्री, वहां हदूद हरम खत्म हो गई, उसके बाद मस्जिद आयशा है। क्योंकि जो मक्के में आया उमरा करना चाहता उसके लिए हुक्म है हदूद हरम से बाहर जाए, वहां से नियत करके लब्बैक पढ़ के आए आगे उमरा करे। तो मस्जिद आयशा जाते हैं, एक मिकात जेराना वहां गए थे जी। उस तरफ हदूद अरब 14 किलोमीटर और ताइफ रोड है। जब आप ताइफ से आए थे विकास से, बड़ी विकास से, दुबई से हराम की, तो 14 किलोमीटर पहले हरम में एंटर हो गए। और एक मिकात है मकाम सुलो हदैबिया, उधर भी 20 किलोमीटर, वो जिद्दा रोड है। सुलो हदैबिया जहाँ वही प्यारे नबी 1400 साहबा के साथ आए मदीने से हराम बांध के उमरा करने, और फिर यहाँ मक्के वालों ने रोक दिया। फिर बैत हुई, बैत रिजवान और सुलह हुई सुलो हदैबिया, उस तरफ की हदूद अरब 20 किलोमीटर। ये सारा हरम जो है इसमें जो भी नेकी करो लाख नेकी की जाए। तो नेकियों का अजर क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। एक नेकी भी बंदे की बख्शिश का जरिया बन सकती है, एक नेकी। तो कोई नेकी मिस नहीं करो, माँ बाप की खिदमत भी करो, बहन भाई से भी अच्छा सलूक करो, बीवी बच्चों से भी अच्छा सलूक करो, हमसाए से भी अच्छा सलूक करो, नेबर्स पड़ोसी हमसाए से भी अच्छा सलूक करो। और यहाँ आए हो तो यहाँ कुछ ना कुछ खर्च करो। माशाल्लाह बहुत सारे लोग आके यहाँ के ज़कात भी अदा करते, अपने माल के सदकात देते। तो आप अगर किसी की फर्ज बनती है तो हिसाब करो। यहाँ 1 रियाल दोगे तो 1 लाख दो, यहाँ 1 रियाल दोगे तो 1 लाख है। कई लोगों को गरीब तो दिखाई नहीं देता समझ के पता नहीं हुई नहीं। तो उलमा से पूछना चाहिए, मुझ पे इतना पैसा, मेरे पास इतना गोल्ड है घर में। कई लोगों ने माँ को हज कराने के लिए, बाप को हज करवाने के लिए पैसा रखा होता, प्लाट खरीदने के लिए पैसा रखा होता, बच्चों की शादी करने के लिए पैसा रखा होता। जब तक वो पैसा आपके पास है हर साल उसमें ज़कात होती रहेगी। मेरा फोन नंबर लिख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिम कोर्स किया है, मुफ्ती कोर्स किया है। कभी कोई मसला पूछना है आप कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप पे, लिखो पे कॉल कर सकते हैं। रमजान का महीना है, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, इसके अलावा दुआ के लिए बहुत लोग कहते हैं। सऊदी कोड लगा के मेरा नंबर लिख लो, इंशाल्लाह राबिता रहेगा। कभी भी कोई काम है मक्का में आप मैसेज करो। ये जो बसें खड़ी आप देख रहे हैं ना उधर, ये गवर्नमेंट ने अपनी खड़ी की हुई है बस, जो अपनी कारों में आ रहे हैं तुम इधर रोक लो, आप रोड पे मारो। अपनी गाड़ी में आता है प्राइवेट खुशी कार में, लैंड क्रूजर, जीप, टैक्सी, वो इधर रोक देंगे। इधर से गवर्नमेंट वाला 34 रियाल लेता है, आने जाने का कच्चा किराया दे देता 34 रियाल। और इधर से वो उमरा करके वापस आएगा, इधर से अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आए, क्योंकि सारी गाड़ियां मक्के में आ जाएगी तो रश हो जाएगी, मक्का पूरी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। गाड़ियां तो इधर बहुत है, आपको पता ही है, हर बंदे के पास 2-2 4-4 गाड़ियां। तो ये अरफात का मैदान आ गया। इधर देखो ये हम कहाँ पहुंच गए? अरफात के मैदान में। ये अरफात का मैदान जहाँ हाजी हज करके आते, यहाँ पहाड़ है जबल रहमत। यार ये माइक का मसला बड़ा हो गया। हाजी साहब राइट साइड पर देखो येलो कलर के बोर्ड लगे पीले रंग के, इनके ऊपर लिखा अरफात स्टार्ट शेयर। क्या लिखा? ये पर्दे थोड़े इकट्ठे कर दो ना, नहीं है अच्छी लगेगी ठंडी ठंडी।
वो देखो क्या लिखा, अरफात स्टार्ट्स हियर। जो अरफात का मैदान है, इसकी जो हदूद है, जो बाउंड्री है, उस पर पहचान के लिए येलो कलर के बोर्ड लगे। मुजदलिफा में आप देखोगे पर्पल कलर जामनी रंग के बोर्ड, मीना में देखोगे ग्रीन कलर के बोर्ड। मीना में ग्रीन कलर, सब रंग हरे रंग के, अरफात में येलो कलर पीले रंग के, और मुजदलिफा में पर्पल कलर जामनी रंग के बोर्ड लगे। तो ये राइट साइड पे क्या है, अरफात का मैदान। यहाँ सबसे पहले कौन आया, आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। जब अल्लाह पाक ने जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, अब्बा हब्बा को, आदम अलैहिस्सलाम को, तो 40 साल के बाद पहली बार उनकी यहाँ मुलाकात हुई। आफ्टर 40 इयर्स, हरम में बुक मिलती हिस्ट्री ऑफ मक्का, उसमें लिखा है 40 साल के बाद पहली बार यहाँ मिले। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे, जहाँ आज श्रीलंका है, जहाँ आज मुल्क है श्रीलंका। उस वक्त तो कोई मुल्क नहीं था ना, ये सारे मुल्क बाद में बने। उस वक्त तो वो दो ही इंसान सारी जमीन के मालिक थे, सारी जमीन के वही मालिक थे। और आदम अलैहिस्सलाम वहां से चले श्रीलंका से, अम्मा हवा यहाँ जद्दा में उतरी। कैसे आए थे आसमानों से? आपके होटल से कोई नीचे आएगा अगर छलांग लगा के, तो हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी ना उसकी, हो सकता मौत हो जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम करोड़ों मील की फासले से कैसे आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम के नूरानी पर के ऊपर बैठकर आए। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिब्रील के पर के ऊपर बैठकर आए। तो जिब्रील के पर कितने बड़े हैं? अभी तो साइंस भी ये बता रही है कि अल्लाह की जो तख्लीक है बहुत बड़ी है। पहले हम समझते थे दुनिया बस यही है, ये पहाड़ है, ये नदियां नाले हैं, दरिया है, समुंदर है, सूरज है, चांद सितारे हैं, ये सारा यही कायनात है। ये तो सारा मिला के एक गैलेक्सी बनती है। साइंसदानों ने इस वक्त जो स्पेस में जा रहे हैं, नासा का इदारा जैसे है, 2000 अरब गैलेक्सी दरियाफ्त कर ली है। कैसी कैसी कायनात अल्लाह ने बनाई है, सुभान अल्लाह। राइट साइड पर देखो अरफात की मस्जिद है, मस्जिद निमरा, जहां हज का खुतबा होता है। राइट साइड पे अरफात की मस्जिद है, मस्जिद निमरा, जहां हज का खुतबा होता है। तो जन्नत अल्लाह ने जो बनाई है बड़ी आली शान नेमत है। जन्नत नेमतों का घर है। जिस तरह जहन्नम अजाब का घर है ना, उसमें हर तरह का ऐसा अजाब है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जन्नत जो है नेमतों का घर है, उसमें ऐसी नेमतें हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के पास भी ऐसी नेमतें नहीं जो आम जन्नती को मिलेंगी। तो अभी इरादा करके जाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र हो गई है, पता नहीं और कितनी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि 70 साल का होकर मरेगा या 80 साल का होकर मरेगा। बेशक। इतने जवान मरते जा रहे। तो इरादा करके जाओ, आप जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करता। देखो सीधा सीधा पता, ये नेकी का रास्ता है, ये गुनाह का रास्ता है। हम बच्चे नहीं है, सबको पता। बंदे का खुद दिल गवाही देता है ये गुनाह है, ना करो, छोड़ दो। तो यहाँ से सच्ची तौबा करके जाओ। राइट साइड पर देखो मस्जिद का जो 3 गुंबद है, वो जगह जहाँ हज का खुतबा होता। मस्जिद का जो 3 गुंबद वाला हिस्सा ये अरफात से बाहर है। 4 मीनार वाला हिस्सा मस्जिद का अरफात में शामिल है। जब प्यारे नबी यहाँ हज के लिए आए थे तो यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। जब सहाबा ने हज किया तो मस्जिद नहीं थी। सबसे पहले यहाँ किसने मस्जिद बनाई? प्यारे नबी के हज करने के 120 साल के बाद खलीफा मंसूर अब्बासी ने, जो अब्बासी खानदान के बनु अब्बास के खलीफा हुए, प्यारे नबी के चचा अब्बास की औलाद से बनु अब्बास के जो खलीफा हुए, उनमें खलीफा हुआ मंसूर अब्बासी। उसने यहाँ सबसे पहले मस्जिद बनाई प्यारे नबी के हज करने के 120 साल के बाद। कोई सहाबी उस वक्त जिंदा नहीं थे दुनिया, सब दुनिया से वफात पा गए। उस सहाबा का जमाना भी खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ मस्जिद बनाई गई। रोसीदा अभी हम आ गए अरफात में। ये देखो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 8 किलोमीटर तक ये सारा मैदान अरफात है। यहाँ सबसे पहले कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा। 40 साल के बाद उनकी पहली मुलाकात यहाँ हुई। 40 साल तौबा इस्तिगफार करते रहे। मुफस्सिरीन ने लिखा, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की जमीन पर पहली मुलाकात हुई, दुआ कबूल हुई अरफात के मैदान में, वो हज के महीने की 9 तारीख थी। उसी दिन को हाजी हज करने आते। वो हज के महीने की 9 तारीख थी। ये पहाड़, ये मैदान है, मैदान अरफात, और यहाँ पहाड़ है जबल रहमत।
ابھی ہم وہاں جائیں گے زیارت کے لیے جبل رحمت پہاڑ کے پاس، انشاءاللہ تو سب ایک ساتھ جائیں گے، صحیح ہے بھائی؟ انشاءاللہ ایک اور اگر کوئی مس ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا تو ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو ہم کیا ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو کوشش کریں زیارت بھی اچھی ہو جائے اور ایک ساتھ واپس بھی آ جائے. ابھی گھڑی کا وقت دیکھو 8:03 ہو رہے، صحیح ہے؟ لاسٹ 9 بجے یہاں سے بس چلی جائے گی. صحیح ہے حاجی صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ جو رہ گیا پھر اپنی گاڑی میں رہے گا. میرے ساتھ رہو، ایک ساتھ رہو تو انشاءاللہ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ اکٹھے جائیں گے. فیملی والے بھائی بھی آ جاؤ. 1 گھنٹہ بس یہاں کھڑی رہے گی، جبل رحمت پہاڑ کی زیارت کر کے آئیں گے.